बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you first day class? I hope everybody will be fine inshallah with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, welcome to my class, and in today's lesson, in today's lecture, we shall start our lesson number 4, that is thank you ma'am. And students, this short story has been written by Langston Hughes. And dear students, Langston Hughes was an American poet, social activist, novelist, playwright and columnist, and he moved to New York City as a young man where he made his career. Dear students, Langston, he was born on 1st February 1902 in United States, and he died on 22nd May 1967. Dear students, in this story, thank you ma'am, it revolves around two characters, and one of them is a large heavy woman who was coming from her work, okay, and she happened to meet a boy who tried to snatch her purse, but instead he snatched her purse. He was caught by that heavy woman, and she dragged him in front of people, and she took him to her house, and then she talked to him, and then she showed a lot of kindness. Dear students, when we talk about the theme of this short story, its main theme is kindness, and the writer, he tries to tell us that how a kind act or kindness towards a person changes him a lot. कैसे उसको बदल देती है. It will be seen by us in this short story that how the kind attitude of the lady, it changed the teenager thief who tried to snatch the purse, you can say different things of the people in order to fulfill his desires, in order to fulfill his needs. So her kindness and her trust and her you can say soft-hearted nature, it changed the boys a lot. Okay, so let's start our text. That is the very first paragraph of your lesson. She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. Okay students, it was talked about the women, the description of the woman. ठीक है, the first sentence है, it is a description of the women that she was large. ठीक है, large women है, large mean heavy, big, जो बहुत ही दराज कदों कामत की हामिल ख़वातीन होती हैं, उनको कहते हैं. That had everything in it but a hammer and nails, and she had a purse and it had a lot of things except hammer and nails. ठीक है, जैसे कील और हथौड़े के अलावा बाकी सारा कुछ था उसके बैग में. It had a long strap. ओके बेटा, स्ट्रैप मीन बैंड या बेल्ट. ठीक है, उसकी जो बेल्ट थी, तनी थी जिसको हम कह सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग थी. एंड शी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस अ शोल्डर. स्लंग मीन हंग. ठीक है, लटकाना. उसने बेटा उसको कहाँ लटकाया हुआ था? अपने शोल्डर पर. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, डार्क, एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. Okay beta, what was the time? It was 11 o'clock at night, and she was walking alone, and beta she was coming back from her job. And ठीक है जी, when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse, उसने बेटा उसका पर्स छीनने की कोशिश की. The strap broke with a sudden single tug. The boy gave it from behind. Okay बेटा, the strap broke, और जो strap थी बेटा it got broke, वो टूट गई with a single tug. okay बेटा, what is meant by tug? pull या jerk. ठीक है, जैसे उसने पीछे से उसको झटका लगाया तो उसकी जो बेटा strap थी वो टूट गई. and it tug the boy gave it from behind, but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. लेकिन क्या हुआ बेटा कि जो लड़के का वेट था और वेट ऑफ द पर्स, इट बोथ combined, and in a result the boy lost his balance. ठीक है, उसका बैलेंस बेटा ख़त्म हो गया, और वो instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. कंसिडर द बेटा सिचुएशन दैट ऐसा कि बजाय इसके कि वो लड़का जो है वो उसको ले उठता, पर्स उसका ले जाता, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप. ठीक है बेटा, ब्लास्ट मीन गस्ट या रश, कि तेज़ी से वो उसको ले जाएगा उसके पर्स को. द बॉय फेल ऑन हिज बैक, तो अपनी बैक पे पीछे अपनी पुश्त के बल गिर पड़ा. ऑन द साइड वॉक बेटा, फुटपाथ पर. एंड हिज लेग्स फ्लू अप. ओके बेटा, फ्लू अप मीन कि ऊपर को उठ गई, उसकी टांगें जो थी वो ऊपर को उठ गई.
द लार्ज वीमन सिंपली टर्न अराउंड एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन सिटर। ओके बेटा, उसने क्या किया कि जो सिटर मीन बेटा बटेक्स या हिप्स, ठीक है, हिप्स कहते हैं सिटर को। तो कहता है उसने क्या किया, द लार्ज वीमन सिंपली बेटा वो महज टर्न हुई, मुड़ी अराउंड एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन सिटर। और बेटा उसने जो ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी उसकी हिप पे जो है उसने ठोकर मारी। देन शी रीच डाउन, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled। और उसने क्या किया, थोड़ा सा वो झुकी नीचे, पिक द बॉय अप, लड़के को ऊपर उठाया, थोड़ा सा मतलब कि पकड़ के उसको ऊपर किया, बाय हिज शर्ट फ्रंट, शर्ट फ्रंट मीन उसका गिरेबान से, ओके, एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड। उसको बेटा इतना झंझोड़ा, इतना हिलाया कि उसके जो टीथ थे इट गॉट रैटल, रैटल मीन थ्रैश, शेक, ठीक है, उसके दांत बजने लग गए, ओके। It's so you can imagine that what type of a woman she was, that she made the boy shaking. Okay, but after that the woman said, pick up my pocketbook boy and give it here। कहते कि पॉकेट बुक मीन पर्स या हैंड बैग या वॉलेट यू कैन से। उसने कहा कि वो पॉकेट बुक पकड़ो, वो पर्स पकड़ो और जो है गिव इट हियर, और इसको मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, बेटा उसने अभी तक उसको टाइटली पकड़ा हुआ था। टाइटली मीन क्लोजली या फर्मली, मजबूती से पकड़ा हुआ था। बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। लेकिन वो नीचे इतना को झुकी कि उसको इस चीज़ की इजाज़त दे सके। इनफ मीन सफिशेंटली, एम्पली, इतना को वो नीचे झुकी। टू परमिट हिम, परमिट अलाउ हिम टू स्टूप मीन बेटा बेंड डाउन, कि इतना उसने उसको इजाज़त दी कि वो थोड़ा सा झुके एंड पिक अप हर पर्स, उसका पर्स उठा सके। देन शी सेड, नाउ एंड यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस पर शर्मिंदा नहीं हो जो तुमने किया। फॉर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, द बॉय सेड, यस मैम। कहते कि फॉर्मली ग्रिप्ड बाय, जिसने मजबूती से वो बेटा उसकी ग्रिप में था, ठीक है, ग्रिप मीन हेल्ड या ग्रैस्प्ड, तो उसकी वो ग्रिप में था। उसने कहा कि द बॉय सेड, यस मैम, जी मैम। द वुमन सेड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम इस किस लिए हासिल करना चाहते थे, किस लिए ये चोरी करना चाहते थे। द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। शी सेड, यू लाई, तुम एक झूठे हो, लायर हो, ओके। बट दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look and some stood watching। लेकिन कहता है कि उस लम्हे कुछ लोग जो थे वहाँ पे रुके, ठीक है, पास गुजरे, stopped, रुक गए, turned to look, मुड़ के देखना शुरू हो गए, and some stood watching, और कुछ बेटा वहाँ पे खड़े होकर देखने ही लग गए। ये as you know that it is the habit of the people that if some incident is going on, so they witness, ठीक है, वो खड़े होकर देखते हैं। If I turn you loose, will you run? asked the woman। और उस खातून ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें लूज़ कर दूँ, मीन टू से कि जो मैंने तुम्हें ग्रिप तुम्हारे ऊपर रखी हुई है, अगर उसको मैं लूज़ कर दूँ तो क्या तुम भाग जाओगे। सो व्हाट विल बी द आंसर गर्ल्स, क्या उसका आंसर होगा। द बॉय सेड, आई एम सो, येस मैम, सेड द बॉय। कहता है जी मैडम मैं भाग जाऊंगा। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, सेड द वुमन, शी डिड नॉट रिलीज हिम, तो फिर जो है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। सो उसने उसको बेटा आज़ाद नहीं किया, ठीक है, उसने उसको नहीं छोड़ा। योर फेस, योर फेस इज डर्टी, आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू एंड यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। कहते तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारा चेहरा तो बहुत गंदा हुआ है, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हें बताए कि जो मुंह धोना है, ठीक है। नो मैम, सेड द बॉय, देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, तो फिर जो है तुम्हारा चेहरा आज शाम धुलेगा, ठीक है। सेड द लार्ज वुमन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, स्टार्टिंग अप इसको उसको खींचते हुए, ठीक है, गली की तरफ। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, ड्रैगिंग मीन पुल, ट्रेल, उसको अपने पीछे खींचते हुए गली में वो चली गई, ओके, गली में दाखिल हो गई। He looked as if he were 14 or 15। ओके, वो ऐसे उसकी बेटा क्या उसकी लुक थी, लाइक अ 14 or 15 ईयर बॉय, फ्रेल एंड विलो वाइल्ड। ओके बेटा, फ्रेल मीन वीक या फीबल, बहुत ही कमज़ोर था। विलो वाइल्ड था, विलो वाइल्ड अंडर वेट, ठीक है, अंडर वेट था, मीन टू से कि फिजिकली हेल्थ वाइज ही वॉज नॉट वेरी मच गुड।
इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स। और बेटा उसने टेनिस शूज़ पहने हुए थे, ठीक है, टेनिस के जूते होते हैं, और नीली पतलून या जीन्स पहनी हुई थी। तो ये जो थी बेटा उसकी जो है वो कंडीशन थी। द वुमन सेड, यू ऑट टू बी माई सन, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। तुम्हें तो मेरा बेटा होना चाहिए था और मैं तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती। लीस्ट आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री। कहते जो आप मैं इस टाइम कर सकती हूँ ये कि मैं तुम्हारा फेस धुलवा दूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है। नो मैन, सेड द बॉय बीइंग ड्रैग्ड बॉय। बेचारा घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा, जिसको घसीटा जाता है बेटा, शी वॉज टॉकिंग वाइल ड्रैगिंग हिम साइड बाय साइड, ठीक है, उसको साथ साथ घसीट रही थी और साथ साथ उसके साथ बातें कर रही थी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न माई लूज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा लूज़ कर दें, मेरे उसे कि मेरी जो ग्रिप है बेटा उसको थोड़ा लूज़ कर दें, टाइट हल्का कर दें। वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर एज अ वुमन, क्या मैंने तुम्हें जब मैं इस साइड में मुड़ी थी, इस नुक्कड़ की तरफ मुड़ी थी, तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। एज अ वुमन, खातून ने पूछा। ओके बेटा, then she brought him to the kitchen, or you can say somewhere where he can wash his face. So beta, it's enough for today inshallah, and I hope that all of you have very much well understood the lesson. And what will you do? You will read the text and learn the synonyms, and you will revise or learn the translation as well. Beta, thank you so much, and I hope all of you have well understood. Allah Hafiz, stay blessed. Allah Hafiz.